Hello students, in this video we are going to discuss some important numericals from the chapter Alternating Current, 12th class physics. These questions will be helpful for you in CBSE, CUET, IIT, NEET. So watch the complete video for understanding the questions. They will help you a lot in the board exams. Okay, so let's start. In this question, we have given the graph between angular frequency and R, XC, XL, where R, XC, XL has their usual meaning, that means resistance, capacitive reactance, inductive reactance. So we have to identify the correct graph for R, XC and XL. First we need the formula of XC, XL and R if there is any relation between R and omega. Let's check it out. So XC we know 1 by omega C, that means XC proportional to 1 by omega because C is constant. So XC proportional to 1 by omega, that means XC will decrease on increasing omega. That means this graph, this is for XC. Omega increase, XC decrease. Then after XL, XL equals to omega L. Omega means XL proportional to omega. That means XL and omega are directly proportional. That means this graph directly proportional. This we can write for XL. Now R independent of omega. So R is constant with omega. This is R. Question done. Only we need the basic formula of inductive reactance, capacitive reactance and resistance. Then that's all. So in this question, a lamp is connected in series with an inductor and an AC source. What happens to the brightness of the lamp when the key is plugged in and an iron rod is inserted inside the inductor? We have this inductor L. What happens to the brightness of the lamp if L has increased? Because by inserting the iron rod inside the inductor, its inductance will increase. Okay, so let's discuss this question. We have to see whether the current is increasing or decreasing on inserting the iron rod inside the inductor. So let's check. I equal to E by XL. Now XL equals to omega L. On inserting iron rod in the inductor, L will increase. On inserting iron rod in inductor, L will increase. So XL equals to omega L will also increase. That means XL is what? XL is the resistance. Resistance is increasing. So which implies I will decrease. That means brightness will decrease. Done. अब कई बार हमको डाउट होता है यहाँ पे कि हमने आयरन रॉड लगाया, आयरन रॉड लगाने से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, ब्राइटनेस बढ़ जाती है. ऐसा नहीं होता है. प्रॉपर कैलकुलेशन से हमको आंसर निकालना है. सारे कंसेप्ट हमको पता होने चाहिए. हमें देखना है करंट यहाँ कम हो रहा है या बढ़ रहा है. तो करंट का फॉर्मूला है E by XL. E इज द EMF, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं. XL इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर. इंडक्टर के अंदर आयरन रॉड डालते हैं तो L बढ़ेगा, उससे XL बढ़ेगा. XL बढ़ेगा तो करंट कम होगा. दैट मीन्स ब्राइटनेस विल डिक्रीज. डन. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू चेक whether the bulb will glow or not with application of AC and DC. दोनों में अलग अलग चेक करते हैं. तो सबसे पहले AC वाला चेक करते हैं हम लोग. AC का हम देखते हैं पहले. फॉर AC I equals to E by XC. XC equals to 1 by omega C. So it has some finite value because omega not equal to 0, C not equal to 0.
finite value, that means current will not equal to 0, so bulb will glow. अब क्या करना है, हमको कैपेसिटेंस बढ़ानी है. कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, I इक्वल्स टू 1 बाई XC. फिर से XC क्या है, 1 बाई ओमेगा C. इफ C इंक्रीज XC डिक्रीज, C करेंगे इंक्रीज तो XC डिक्रीज हो गया, और XC डिक्रीज हुआ तो विच इंप्लाइज करंट विल इंक्रीज, सो ब्राइटनेस विल इंक्रीज. डन. इन केस ऑफ AC डन हो गया. फॉर DC की हम बात करते हैं, तो फिर से हम करेंगे. XC कितना हुआ, 1 बाई ओमेगा C, बट ओमेगा फॉर DC इक्वल टू 0 फॉर DC. ओमेगा 0, इसका मतलब क्या हुआ, XC कितना हुआ, 1 बाई 0 इंफिनिटी. XC इंफिनिटी, तो करंट कितना हो गया, E बाई XC, E बाई इंफिनिटी, इसका मतलब 1 बाई इंफिनिटी 0, सो करंट इक्वल टू 0, सो बल्ब विल नॉट ग्लो. ओके, अब बल्ब जल ही नहीं रहा है, तो C आप चाहे बढ़ाओ चाहे कम करो, C का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इन केस ऑफ DC bulb will not glow. In case of AC, bulb will glow. On increasing the capacitance, brightness will increase. यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, why capacitor doesn't allow the DC और why capacitor blocks DC. ये भी हमको पता लग गया कि कैपेसिटर DC को क्यों ब्लॉक करता है. DC की फ्रीक्वेंसी होती है 0, फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो XC बनेगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर इज इनफाइनाइट, सो करंट विल बी 0, सो इट blocks the DC. Question is done. This simple question. An electric lamp having coil of negligible inductance connected in series with a capacitor and an AC source is glowing with certain brightness. How does the brightness of the lamp change on reducing the capacitance and the frequency? So we have given a diagram. We will start from the basic formula of I equals to E upon XC. Now XC equals to 1 by ओमेगा C. अब यहां क्या दिख रहा है हमको, कैपेसिटेंस रेड्यूस कर रहा है. इफ C reduced then XC increased. If XC increase then I equals to E by XC decrease. So brightness will decrease. Second part, frequency. तो यहां से फिर अगेन हम बात करते हैं XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C. अब C कांस्टेंट कर दिया है, फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस किया है, ओमेगा रिड्यूस किया है. इफ omega is reduced then XC increased, that means I equals to E by XC decreases, so brightness will decrease. अब क्वेश्चन देखेंगे, प्रॉपरली लिखा हुआ है जस्टिफाई. अब आप ऐसा नहीं करना है कि आंसर आया और तुक्के लगा दिया आपने कि बढ़ेगा कम होगा, कुछ भी लिख दिया, इंक्रीज और डिक्रीज. जो भी आपका आंसर लिखना है क्लियरली आपको जस्टिफाई करना है, मतलब प्रॉपरली आपको प्रूफ करना है कि कैसे कैसे आपका आंसर करेक्ट है. ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना. देखो बेसिक हम बार बार यही कुछ यूज कर रहे हैं. I इक्वल टू ई बाई XC, XC XL है, जो भी होगा इंडक्टर कैपेसिटर है, देखेंगे उस हिसाब से, और हम सिंपल सी करंट निकाल कर देख लेंगे कितना आ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है. अब करंट चेंज करेगा तो ब्राइटनेस भी चेंज करेगी. ये हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है बस. ठीक है, हो गया.
In this question, a capacitor C, a variable resistor R and a bulb B are connected in series to the AC mains. The bulb glow with some brightness. How will the glow of bulb change if first part में a dielectric slab is introduced between the plates of the capacitor, keeping resistance to be same. Then the resistance R is increased, keeping the same capacitance. दो केस यहाँ पे हैं. अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ R और C लगे हुए हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ RC सर्किट और हम बात करते हैं RC की. सिंपल, हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बेसिक फॉर्मूला LCR का याद रखेंगे. इम्पीडेंस क्या होती है LCR की? R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अब यहाँ इंडक्टर हमको दिया हुआ नहीं है, इंडक्टर नहीं होगा तो ये ज़ीरो. सो Z इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर. Now Z equals to R square plus 1 by omega C square. अब क्वेश्चन कहता है डायलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स. सो पहले ये पढ़ लेते हैं हम लोग क्या सीन है. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई D अगर प्लेट्स के बीच में एयर है. अगर हम लोग क्या कर देते हैं, डायलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो ये बन जाएगी CD K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू K. कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी. अब कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, 1 बाई ओमेगा C डिक्रीज ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब. C इंक्रीज करेगा, 1 बाई ओमेगा C डिक्रीज करेगा. अब ये R तो कांस्टेंट है, ये पार्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. डिक्रीज करेगा तो Z विल डिक्रीज. अब Z क्या है, इंपीडेंस. इंपीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस सर्किट की अभी कम हो रही है. रेजिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, करंट विल इंक्रीज एंड सो द ब्राइटनेस. तो यहां पे क्या हो गया, ग्लो बढ़ जाएगा. सो ग्लो विल increase. Done. Now second part is R is increased, capacitance is constant. So again Z equals to under root R square plus XC square. Now XC is constant, R is increasing. On increasing R, Z क्या होगा, increase करेगा, Z will increase. अब Z क्या है, इम्पीडेंस. इम्पीडेंस मीन्स रेजिस्टेंस अगेन. सो ऑन इंक्रीजिंग Z, सो करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज. सो द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब विल डिक्रीज. ये हो गया. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. बेसिक कंसेप्ट हमको पहले पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस से क्या फर्क पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक डालने से. इस तरह के क्वेश्चन ही CBSE ज़्यादातर पूछती है और ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस CUET में पूछे जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं और जो किसी भी बड़े से बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. तो अगर जिस बच्चे को यही नहीं पता कि कैपेसिटेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा तो उसको क्या होगा, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा. तो सबसे पहले जो भी ये चीज़ें आपको पढ़नी है बिल्कुल ध्यान से पढ़नी है. कम पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो, चीज़ों को इकट्ठा करो माइंड के अंदर कि क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं हम लोग. ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन ए डिवाइस X इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा T. द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर इन वन साइकिल इज शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ. Identify X, which of the curves ABC represents the voltage, current and the power consumed in the circuit. Justify your answer. Means आपको पहले ये बताना है कि डिवाइस कौन सी है जो ऐसा ग्राफ बनाती है. For the answer we have 3 options: capacitor, inductor, resistor. Out of 3 we have to choose which device shows this graph. सबसे पहला काम है हम सेकेंड पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं. तो पहले हमें ध्यान देखना है कि कौन सा करंट है, कौन सा वोल्टेज है, उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये डिवाइस कौन सा है.
तो सबसे पहले देखते हैं कि वोल्टेज क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसका मतलब वोल्टेज है, साइन का फंक्शन कैसा होता है, साइन करेगा जीरो से स्टार्ट। तो जीरो से कौन सा ग्राफ स्टार्ट कर रहा है, दो ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इनमें क्या करना है हमको, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो पावर का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहला पार्ट ये है कि जिसका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है ग्राफ का, वो तो हो गई पावर। इसका मतलब ए हो गया मेरा क्या, ए तो फिक्स हो गया पावर। अब बचे दो ग्राफ, पावर अलग हट गया, करंट वोल्टेज की बात करते हैं। वोल्टेज कह रहा है साइन ओमेगा टी। तो साइन कहां से करेगा, जीरो से स्टार्ट। जीरो से कौन सा ग्राफ स्टार्ट कर रहा है, ये वाला ग्राफ। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है ये क्या है, हमारा वोल्टेज है। तो बी क्या हो गया, वोल्टेज। अब सी क्या बचा, करंट। ओके, ए पावर, बी वोल्टेज एंड सी करंट। अब देखना है कि करंट कहां से कर रहा है स्टार्ट। करंट मैक्सिमम से स्टार्ट कर रहा है, वोल्टेज जीरो से है, तो करंट चल रहा है आगे। आगे क्या चल रहा है, इसका मतलब क्या है, करंट लीडिंग वोल्टेज। सो एक्स इज ए, व्हाट इज एक्स, करंट किस में लीड करता है, करंट करता है कैपेसिटर में लीड। सो एक्स इज ए कैपेसिटर। ये क्वेश्चन 5 से 6 बार सीबीएसई में आ चुका है और फिर से आने के चांस है, लास्ट 3-4 ईयर से नहीं आ रहा है। उससे पहले 5-6 बार आ चुका है क्वेश्चन, ग्राफ वाला क्वेश्चन। डिफरेंट ग्राफ बनाएंगे, आपको पूछेंगे व्हाट इज एक्स एंड व्हाट एबीसी आर रिप्रेजेंटिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से रखना, बहुत ईजी है और 2 नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे इसके अंदर। क्या करना है, सबसे जो बड़ा ग्राफ दिख रहा है, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला है, वो तो पावर हो गया। उसके बाद वोल्टेज अगर दी हुई है आपको वी नॉट साइन ओमेगा टी, या कॉस होता तो वो हाई यहाँ से करता है स्टार्ट, साइन दे रखा है तो जीरो से कर रहा है स्टार्ट। तो वोल्टेज इजी है निकालने के लिए। थर्ड वाला बचा करंट। अब अगर आपको वोल्टेज नहीं दिया हुआ तो क्या करना है, कि वोल्टेज साइन कॉस नहीं दिया हुआ है, बस सीधा बोल दिया एसी वोल्टेज है कोई। फिर क्या देखना है, हमको पता है कि वोल्टेज क्या होती है, आई आर, और आई जब निकालूंगा तो वोल्टेज अपॉन आर। तो हमें ये देख लेना है कि एम्पलीट्यूड करंट का कम रहेगा, वोल्टेज का ज्यादा रहेगा। तो इन दोनों ग्राफों में देखना है कि किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ज्यादा वाला हमारा वोल्टेज, कम वाला करंट। इस तरह से इस क्वेश्चन को डील करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो गया।